Morning students. In a theory of computation subject unit number 6 computable function. Now in this session we will going to discuss about a mu recursion function. Right, previously we have discussed about a recursive function, right, primitive recursive function, about minimalization, bounded minimalization and unbounded minimalization. So now we will see about a mu recursive function. So basically, the mu recursive functions, or it will also known as a general recursive functions, is a partial function that can take the finite number of tuples as an input, which is a natural number, and it will return a single natural number. And we already have seen about a partial function and a total function, right? So what is the difference between the partial and a total? So in a partial function, whenever we give a finite number of input to the function, we will get a single input, single output for the each and every input. While in a total function, what we will get, we will give a finite numbers of input and we will get a finite numbers of output, which is a unique, right? So basically, the mu recursive functions are a partial function. It means that if we give the finite number of input, or we can say a finite tuples of a natural number, and we will get a single natural number as an output. So there are a smallest class for a partial function because we will get only a single number of output. So that include the initial functions and it closed under the composition, primitive recursion and the mu operator. It means that the partial, or we can say a mu recursive function, is the smallest class of the partial function, right? And it is closed under the composition function, under the primitive recursion and under the mu operator, right? So the definition of a mu recursive function is said that, so the set of the m, it means the set of machine m of a mu recursive, or we can say a simple recursive or a partial function, is defined as every initial function is an element of a m. It means we have previously discussed a recursive function, right? Sorry, initial functions, which is a three, right? Three initial functions are there: zero function, successor function, and a projection function, right? Which is the initial functions. So this three initial function is an element of the machine M. Second thing, each and every function which is obtained from the element of a M is by performing the composition or a primitive recursion, and which is an element of a M. It means that कि जो भी फंक्शन हम ऑब्टेन करेंगे मशीन के लिए, वो किस तरह से ऑब्टेन होगा? या तो वो कंपोजिशन से ऑब्टेन हुआ होना चाहिए, या तो प्रिमिटिव रिकर्जन के परफॉर्मेंस से, और आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रिमिटिव फंक्शन वो हमें जो फंक्शन मिला है वो होना चाहिए. Then we can say that that particular function is a mu recursive. And the third thing is that if for the every input n which is greater than or equal to 0, and the every total function which is said that the function says that which is a natural number n raised to n plus 1, is the successor of a natural number which is goes to the natural number n in a machine m, the function m of machine of the function says that the n raised to n to the n, which is a defined as a mu recursive function, which is called as a machine of m for the input x, the mu of the recursive function y of f of x comma y, which is equal to the 0, which is we have discussed in our previous session, right? This function. So that particular function is said that this is the mu function.
which is an element of the set of M. So these three conditions must be satisfied so that we can say that the function is a mu recursive function. And one theorem is that which is for the all the mu recursive partial function are computable. It means that कि जो भी फंक्शन कि जो हम कहते हैं कि वो म्यू रिकर्सिव पार्शियल फंक्शन है वो सारे के सारे कंप्यूटेबल है. कंप्यूटेबल इन द सेंस कि वो ट्यूरिंग मशीन से कंप्यूट होंगे ही होंगे. तो उसका जो प्रूफ है वो क्या है कि सो फॉर द प्रूफ विच इज यूजिंग अ स्ट्रक्चर इंडक्शन का कंसेप्ट यूज करता है और वो क्या कहता है कि इट इज सफिशिएंट टू शो दैट कि जो फंक्शन n रेज टू n प्लस 1 टू द n इज अ कंप्यूटेबल टोटल फंक्शन है. Then it is a unbounded minimalization of the machine of M, right? M of F, it means the unbounded minimalization is a computable partial function. It means that कि जो function है वो computable total function है, right? So by using the structure induction it is a sufficient कि हम उसको define कर सके कि for the function which is a computable total function which is a also unbounded minimalization जो है उसका हम परफॉर्म करेंगे तो वो कंप्यूटेबल पार्शियल फंक्शन कहलाया जाएगा. सो इफ द t of f, it means the Turing machine of a function is a Turing machine computing the f. t of f is means कि ट्यूरिंग मशीन की जो कंप्यूट करता है फंक्शन को. सो अ ट्यूरिंग मशीन which the t which compute the unbounded minimalization which operates on the input x by computing the f of x comma 0 or the f of x comma 1 up to the so on until it discovers an I for which the f of x comma I become 0. It means that कि हम एक फंक्शन को ट्यूरिंग मशीन में इनपुट देते हैं टू कंप्यूट द फंक्शन, राइट? और जो इनपुट है x वो किस तरह से कंप्यूट होगा तो x के लिए जो फंक्शन है उसमें x के लिए वो सबसे पहले 0 के लिए काउंट करेगा, फिर 1 के लिए, वो कंटिन्यू रहेगा इनफाइनाइट तक. कब तक चलेगा ये कि जहां तक i की वैल्यू जाती है तब तक. और i की वैल्यू कब मिलेगी हमें कि जब एक पर्टिकुलर लेवल पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 0. और जब उसकी वैल्यू 0 हुई एट दैट टाइम जो ट्यूरिंग मशीन है वो वहां पे होल्ड करेगा और वो जो होल्ड होगा वो क्या होगा हमारा h of a होगा. इट मींस अ एक्सेप्टिंग स्टेट ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन. और वो हमारा जो i है वो हमें मिलेगा एज एन आउटपुट. सो इफ देयर इज अ नो सच आई कि जहां पे कोई ऐसा आई नहीं है कि जहां पे हमें वो पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस मिलता है. सो द कंप्यूटेशन विच कंटिन्यूज फॉर एवर विच इज एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ द unbounded minimalization of the function is undefined in that case, right? So अगर ऐसे केस में कि जहां पे हमें ऐसा कोई आई नहीं मिलता है कि जिसका कंप्यूटेशन 0 हो और हमारा ट्यूरिंग मशीन वहां पे होल्ड करे, तो क्या होगा? ट्यूरिंग मशीन जो है वो फॉरएवर के लिए कंटिन्यू ही रहेगा, राइट? बट वो भी का क्या होगा कि वो भी एक्सेप्टेबल होगा. क्यों? क्योंकि उसका जो अनबाउंडेड मिनिमलाइजेशन है वो अभी तक अनडिफाइंड है. तो ऐसे केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी म्यू रिकर्सिव पार्शियल फंक्शन है वो सारे के सारे कैसे है? कंप्यूटेबल है, राइट? और इसके लिए एक सॉलिड नंबरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई जिसको कहा जाता है गोडल नंबरिंग. तो गोडल जो नंबरिंग है वो इन 1930s के अंदर एक लॉजिशियन कुर्ट गोडल ने डेवलप की थी एक मेथड फॉर द अरिथमेटाइजिंग के लिए फॉर द फॉर्मल एक्सियोमेटिक सिस्टम कि जिसमें क्या करते थे कि बाय असाइनिंग अ नंबर टू द स्टेटमेंट एंड द फॉर्मूला क्या होता था कि जो भी स्टेटमेंट और फॉर्मूला है उसको नंबर असाइन किया जाता था और उसके अकॉर्डिंगली उसका अरिथमेटाइजिंग किया जाता था.
so as to able to describe that the relations between the object in the system by using the relation between the corresponding नंबर। तो वहां पे क्या होता था कि जो स्टेटमेंट्स होते थे या तो फॉर्मूला होती थी उसको नंबर सिस्टम असाइन किया जाता था और उस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग नंबर सिस्टम है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उससे क्या कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स थे जैसे कि फंक्शन और फॉर्मूलाज है उसकी जो रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब की जाती थी। सो फॉर दैट लॉजिशियन कुर्ट गॉडल ने ये एक मेथड इंप्लीमेंट की फॉर द अरिथमेटाइजिंग टू द सिस्टम की जहां पे नंबर सिस्टम जो है वो असाइन की जाती थी स्टेटमेंट। so the numbering scheme introduced by the Gödel have the proved to be useful in a number of other settings, right? so ये बेसिकली जो नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी वो बहुत सारी अदर एप्लीकेशन और बहुत सारी और सेटिंग्स के लिए बहुत यूजफुल थी। जैसे कि वी विल यूज दिस अप्रोच टू अरिथमेटाइज द ट्यूरिंग मशीन। मेन हम इसको ट्यूरिंग मशीन के अंदर अरिथमेटाइज करने के लिए यूज होते थे। तो जो कहाँ पे कि जो ट्यूरिंग मशीन के अंदर जो उसके ऑपरेशंस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एंड द फॉर द कंप्यूटिंग और फॉर द कंप्यूटेशन व्हिच परफॉर्म बाय द ट्यूरिंग मशीन इन द टर्म ऑफ द प्योरली न्यूमेरिकल ऑपरेशन, राइट? ट्यूरिंग मशीन के अंदर ऐसे ऑपरेशन कि जो प्योरली न्यूमेरिकल ऑपरेशन थे उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसके ऑपरेशंस डिस्क्राइब करने के लिए ये गोडल नंबरिंग सिस्टम जो है वो यूजफुल अप्रोच था। तो एज एन रिजल्ट हमें क्या मिला उसमें? तो एज अ रिजल्ट ऐसा कहा गया कि जो ट्यूरिंग कंप्यूटेबल है जो भी फंक्शंस इट मींस जो भी फंक्शन जो है वो हम ट्यूरिंग मशीन से कंप्यूट कर सकते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस कैसे हैं? म्यू रिकर्सिव फंक्शन है। तो बाय यूजिंग द गोडेल नंबरिंग अप्रोच, right, it is proved that कि all the Turing computable functions are a mu recursive function, right? तो ये पर्टिकुलर स्कीमा जो है वो इंट्रोड्यूस हुई आफ्टर द गोडल नंबरिंग सिस्टम, राइट? कि जो ट्यूरिंग कंप्यूटेबल जो भी फंक्शंस होंगे उसको वो सारे के सारे फंक्शन म्यू रिकर्सिव फंक्शंस कहलाए जाएंगे। और उसका जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली उसमें नंबर एंड अ कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए दो स्टेटमेंट्स डिफाइन किए गए थे। सबसे पहला है कि देयर एग्जिस्ट एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर्स बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग, मींस हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफेक्टिवली बाय यूजिंग द कैरेक्टर्स। and the second thing is that the effective representation of a character by using a natural numbers। तो उसके लिए जो डेफिनेशन की गई वो क्या है कि जो अल्फाबेट है द सेट ऑफ अल्फाबेट सिग्मा की जो के साइज का है, सो फॉर द ईच एंड एवरी सिंबल ऑफ द सिग्मा इट इज अ रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर नंबर व्हिच इज अ बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 टू द k माइनस 1। उसकी जो भी साइज है उससे कम, इट मींस अगर उसकी साइज 15 है तो 0 टू 14 से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट ऑफ अल्फाबेट को। और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग w which is equal to the starting from the first symbol w of 0 up to the w of the length of k is such that कि जो फंक्शन है उसको क्या कहा गया है कि टोटल नंबरिंग सिस्टम gd of the w it is the input string which is equal to the sigma starting from I0 to the length of L k raised to L minus I, it means the k minus 1 the ZD of the W of I। so simple है, जो भी कैरेक्टर आता है उसको हम नंबरिंग सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स सी द एग्जांपल। फॉर एन एग्जांपल एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स दिया गया है A to Z, so it means total 10 numbers। so according to the statement हम टोटल नंबरिंग ऑफ द ए हम 0 लेंगे, बी को 1, सी को 2, 3, 4 अप टू द जे को हम 9 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमने एक फंक्शन लिया और उसमें जो इनपुट स्ट्रिंग है वो है ए बी ए एफ जी एंड जेड, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए का जो टोटल नंबरिंग है वो है 0, तो 0 0 1 0 0, एफ के लिए 5, जी के लिए 6 और जे के लिए 9। So the total numbering of the A, B, A, F
gz is equal to 001 00 5 6 and 9। बट ये जो कोड है वो कैसा है, एम्बिग्यूअस है, तो एम्बिग्यूटी होनी नहीं चाहिए। एम्बिग्यूअस कैसे है, तो चलो देखते हैं कि इस ए में हमने एक और ए ऐड कर दिया, तो क्या हो गई स्ट्रिंग 000100569। और अगर हम नंबरिंग सिस्टम को देखें और एज पर द नंबरिंग स्कीमा, ये जो GD ऑफ द A B A F G Z विच इज इक्वल टू द A B A F G Z, जहां पे एक कम है, ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है, अगर हम इसको गोडल नंबरिंग से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो नंबरिंग है वो है 000 से स्टार्ट होता है और ये 20 से स्टार्ट होता है। तो अगर नंबरिंग सिस्टम की बात करें तो हम आगे वाले जीरो को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो लास्ट में क्या बचा 100569 और ये 100569, तो बोथ आर इक्वल। तो अगर हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं गोडल नंबरिंग से तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या आया into the Gödel numbering system is the solution is that use an alphabet of a size k plus 1 and do not encode the any symbol by 0। तो सिंपल सी बात हो गई कि k को रिप्लेस कर दिया +1 से। इट मींस एक हम जो पहले k -1 से रिप्रेजेंट करते थे स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 टू द k -1 साइज के लिए, उसके बजाय क्या करना है कि 1 से स्टार्ट करो और k +1 तक जाओ, बट 0 से उसको एनकोड नहीं करना है। So the new definition is that the Gödel numbering of the string W is equal to I to the 0 starting from the 0 to the length L, k plus 1 raised to L minus I of the GD of W of I। और इसी रिप्रेजेंटेशन से हम ये कह सकते हैं कि all the Turing computable functions are a mu recursive function। So this is it for this session. Thank you very much.